ہمارے اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں کتنی بے حیائی بڑھتے چلی جا رہی. آج مسلمان عورتوں کا لباس، مسلمان عورتوں کی زندگی، مسلمان عورتوں کی دعوتیں، مسلمان عورتوں کی گھریلو زندگی، مسلمان نوجوان بچیوں کا آج کے زمانے میں ذوق و شوق کے اندر اس قدر مبتلا ہو جانا کہ جہاں پر مرد حضرات ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ جس کو کہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھنے کو مل رہے. اللہ پاک جس کو ہلاک کرنا چاہتے اس کو حیا چھین لیتے. اور غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارا سماج کس راستے پہ جا رہا. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے ہر ماں باپ کو. ہمارے بچے حیادار ہے یا بے حیا ہے؟ کوئی لڑکی اگر جینس پہنتی ہے، اسکرٹ پہنتی ہے اور وہ لیگنس پہنتی، شارٹس پہنتی، ایسا لباس پہنتی جس سے اس کا جسم محسوس ہوتا ہے، جسم کا رنگ نظر آتا ہے، کپڑے بہت ٹائٹ ہے، ایسی لڑکی بے حیا ہے. اور ہم نے ابھی حدیث میں سن لیا اللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر سے حیا نکال لیتا ہے. ہر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے، کیا حقیقت میں میری بیٹی ہلاک ہو جائے گی؟ کیا میرا بیٹا ہلاک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرمان تو سچا ہوگا، نبی کے فرمان میں تو ایک پیسے کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آج کے زمانے میں ہر ایک کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. کوئی انسان زنا کرتے وقت میں کامل مومن نہیں رہتا. یعنی جب کوئی انسان اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے اور جب وہ حیا کے ساری چادروں کو تار تار کر دیتا ہے تو اس وقت میں وہ کامل مومن نہیں رہتا. اگر اسی حال میں مر گیا تو سوچنا چاہیے کیا ہوگا. میری ماں میری بہنوں، آج کے موجودہ زمانے میں، موجودہ سماج میں، ہمارے اس وقت کی جنریشن میں 2025 کے دور میں نوجوان نسلوں کے ذہن و دماغ کو بے حیائی اور گندگی کا دیوانہ بنا دیا جا رہا ہے. بے حیائی کو حیا کا نام دیا جا رہا ہے، بے شرمی اور بے غیرتی کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے. اور فروری کا مہینہ آتا ہے تو ویلنٹائن ڈے کے عنوان پر کیسی خطرناک قسم کی بے حیائی اور بے شرمی اور انتہائی درجے کی درندگی ہم اپنے آنکھوں سے سماج میں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں. یہ سب کا سب نوجوانوں کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ میں یہ ارشاد فرما دیا تھا اے عرب کے بدکاروں یا بغای العرب یا بغای العرب، اے عرب کے بدکاروں، اے عرب کے بدکاروں، ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ زنا اور پوشیدہ شہوت سے ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اے نوجوانوں مجھے سب سے زیادہ خطرہ کس کا ہے؟ تمہارے بارے میں زنا کا خطرہ ہے. یہ ایسی نحوست ہے کہ جس سے معاشرتی نظام تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. گھر گھر میں فتنہ فساد اور خون خرابے کی نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ نسلیں بھی مشتبہ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو اسلام نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا. ویسٹرن کلچر آج جو ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے محبوب بنا ہوا ہے، ویسٹرن کلچر اور مغربی ملکوں اور یورپین کنٹریز کا آپ سرسری طور پہ جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں کی زندگی کے اندر میں نہ تو اپنی دین کی کوئی اہمیت رہی، نہ دین کا کوئی مقام رہا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ویسٹرن کلچر کی غلامی میں ڈوبے ہوئے، جن کو ویسٹرن کلچر پسند آ رہا ہے. وہ ویسٹرن کلچر جہاں پر کتنی ایسی عورتیں ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کا نکاح بھی نہیں ہوا اور وہ ماں بن چکی، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، جن کا نکاح بھی نہیں ہوا وہ ماں بن چکی ہے. کتنی ایسی نوجوان بچیاں جو شادی سے پہلے کم عمری میں ماں بن چکی ہے. اور نئی سروے رپورٹس کے مطابق ماہرین نے لکھا ہے، تجزیہ نگاروں نے بیان کیا ہے، کتنی ایسی نوجوان کم عمر لڑکیاں ہیں جو ابھی اسٹوڈنٹ ہے اور اسی حال میں وہ ماں بن چکی ہے. ان کے لیے چائلڈ اسکول بھی کھولا گیا، مدر چائلڈ اسکول اس کا نام دیا جا رہا کہ ایسا اسکول کہ جو بچی ہے لیکن وہ ماں بنی ہوئی، وہ اپنے کلاس میں بیٹھ کر پڑھتی ہے تو ساتھ میں اپنے بچے کو لے کے بیٹھتی. یہ حال اس مغرب اور ویسٹرن کنٹریز میں ہو چکا ہے. آج جس ہمارے مسلمان بچے جس کو پسند کر بے حیائی اور بے شرمی کا سیلاب ہے، امٹتا ہوا طوفان ہے جو ہماری نسلوں کو تباہ کرتا چلا جا رہا. کتنی ایسی وہاں پر عورتیں ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں کا باپ کون. کتنے ایسے اسکول سے آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے
उन स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन के मौके पर जहां फादर नेम लिखा जाता है वो खाना खाली होता है, माँ का नाम लिखा जा रहा लेकिन बाप का नाम नहीं पता। वही कल्चर आज हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने मुसलमान समाज में, हमारे अपने हिंदुस्तान में, हमारे इस मशरकी मुल्कों में दुश्मन चाहता है कि वो पैदा कर दे। ये फिक्र के साथ, एक मंसूबे के साथ हमारे बच्चों को ज़हनी तौर पर बेहया बेशर्म बनाया जा रहा है। ये जिना इंतहाई घटिया, इंतहाई घिनौना, इंतहाई गंदा, इंतहाई गलीज अमल है, लेकिन आज मुसलमान बच्चे, मुझे माफ कीजिएगा, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आए दिन इन कामों में मुब्तला होती जा रही है। वैलेंटाइन डे के मौके पर फरवरी के महीने में क्या हो रहा है? लड़का लड़की को, लड़की लड़के को एक दूसरे को पसंद करके अपनी अपनी मोहब्बतों और पसंद का इजहार कर रहे हैं, और इसको मोहब्बत का दिन कहा जा रहा है। ये मोहब्बत का दिन नहीं, ये जिना का दिन है और अल्लाह के गज़ब को दावत देने का दिन है। कितने मुसलमान बच्चे बच्चियां वैलेंटाइन डे के मौके पर वैलेंटाइन डे कार्ड दे रहे हैं, वैलेंटाइन डे के ऊपर गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे पे मुलाकातें हो रही है। कितनी मुसलमान औरतें हैं जिनकी बच्चियां कॉलेज को जाती है, जिनके बच्चे कॉलेज को जाते हैं, वैलेंटाइन डे के मौके पर बच्ची को वो बदला बदला नजर आता है बच्ची का अमल, लेकिन उसके बावजूद माएँ खामोश बैठी हुई है कि अब बच्ची को इस उम्र में कुछ बोलेंगे तो हम नहीं बोल सकते। कब तक खामोश बैठेंगे? जब तक के बच्ची ना माँ बाप का मुंह काला कर रही है या मुसलमानों के मजहब के ऊपर थप्पा लगा रही है। कितनी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ में भाग रही है, मुर्तद हो रही है, उनका इस्लाम खत्म हो रहा, उनका ईमान खत्म हो रहा, उनका दीन खत्म हो रहा। सारा का सारा उनके पास का जो कुछ सालों से उनको सिखाया गया था वो सब खत्म हो रहा। मेरी माओ, मेरी बहनों, इस वक्त में वैलेंटाइन डे के मौके पर मुसलमान घरानों के अंदर ये जहर फैलाया जा रहा। और मैं आपसे कहूं, सिर्फ वैलेंटाइन डे के मौके पे नहीं बल्कि पूरा साल आज हम अपने घरानों में अपने बच्चों का जहन बिगाड़ रहे हैं। बच्चों को घरों में बिठाकर फिल्में दिखाई जाती, ड्रामे दिखाए जा रहे। फिल्मों का कॉन्सेप्ट क्या है? फिल्म में क्या बताया जा रहा कि एक लड़का, एक लड़की, एक हीरो, एक हीरोइन, उन दोनों को मिलना है, दोनों का निकाह हो जाना है, दोनों की मोहब्बत को कामयाब होना है, तो एक साथ दोनों को मिल जाना है। अब उसके लिए पूरी फिल्म दिखाई जाती है और उस फिल्म में यही बताया जा रहा कि किसी तरह ये दोनों लड़का लड़की एक हो जाए और इन दोनों के दरमियान जो रुकावट डालने वाला होगा वो दुश्मन है, वो विलन है। चाहे वो लड़की का बाप क्यों ना हो, चाहे वो लड़के का बाप क्यों ना हो, चाहे वो लड़की की बहन क्यों ना हो, भाई बैठा है, बहन बेटी है, बाप बैठा है, माँ बैठी है, औलाद बैठी है, बेटे बैठे हैं, बेटियां बैठी है, उन सारे लोगों की मौजूदगी में बैठकर सब के सब ये मंजर देख रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं, ये ड्रामा देख रहे हैं, ये सीरियल देख रहे हैं कि वो लड़का लड़की को मिल जाना। अब उसके पीछे घंटों लगाए जा रहे हैं। हर किसी की ये तमन्ना हो रही किसी तरह ये लड़का ये लड़की को मिल जाना, इस हीरोइन को ये हीरो मिल जाना, इसको अपना आशिक मिल जाना। जहन क्या बन रहा है कि ये हराम तरीके की जो मुलाकात है, जहन ये काम कर रहा है कि ये लोग मिल जाना। तरस खा रहे हैं ये लोग, और तरस खाकर उनको मिलाने का मंसूबा बना रहे हैं और बच्चे घरों में बैठ के ये सब सीख रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ मेरी बहनों, 5th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, अभी तो 2nd क्लास के बच्चों के किस्से भी इस उन्वान पे आना शुरू हो रहे हैं कि लड़का लड़की के बारे में गलत ख्यालात रख रहा है। घरों में रहकर बच्चे ये सब सीख रहे हैं, टीवियों में देखकर, फिल्मों में देखकर, ड्रामों में देखकर बच्चे ये सब कुछ सीख रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, इस तरफ खास तौर पे हमारी नौजवान नस्लों को समझाया जाए, बताया जाए। हदीस पाक में आता, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़ा ज़हरा ज़िना ज़हरल फ़क़्र वल मस्कना, जब ज़िनाकारी की कसरत हो जाएगी तो फ़क़्र और मोहताजगी आम हो जाएगी। जब ज़िना बढ़ेगा तो फ़क़्र भी बढ़ेगा, मोहताजगी भी बढ़ेगी। आज हमारे नौजवान नस्लों को ज़िना के रास्ते पे डाला जा रहा, बेहयाई और बेशर्मी के रास्ते पे डाला जा रहा, उनके जहन को गंदा किया जा रहा। और आज सिनेमा के उन्वान पे, फिल्मों को देखकर, ड्रामों को देखकर, वैलेंटाइन डे के उन्वान पर आज ज़िना को प्रमोट किया जा रहा। और कितने ऐसे मुसलमान घराने हैं जो अपनी बेटियों को रोकने को तैयार नहीं। कब तक खामोश बैठेंगे? हमारे घरानों का माहौल बदलना पड़ेगा, हमको सही फिक्र देना पड़ेगा, हमको सही सोच देनी पड़ेगी, हमें एक सही फिक्र बच्चों की बनानी पड़ेगी।
उनका जहन बनाना पड़ेगा। हर लड़की को ये समझाना पड़ेगा कि देखो बेटे, आपका निकाह, आपके निकाह की उम्र का जब वक्त हो जाएगा निकाह का, जब करेंगे, आपके निकाह का वक्त जब होगा आपका निकाह कर दिया जाएगा, लेकिन खुदा के लिए आप किसी गलत रास्ते में मत जाओ। आपके माँ पर, आपके वालिद पर एतमाद करो, भरोसा करो। अपने बेटों को समझाना पड़ेगा कि बेटा, जब आपकी निकाह की उम्र हो जाएगी तो हम आपका निकाह कर देंगे, जल्दी निकाह कर देंगे, ताखिर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये गलत कदम मत उठाओ। बच्चियों को समझाना पड़ेगा, नस्लें मुश्तबे हो जाएगी। आज कितने ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां कि निकाह से पहले वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसको ज़िना कहा जाता है, जिसमें खुदा की लानत और गज़ब है, और निकाह से पहले लड़की माँ बन रही। मेरी माँ और मेरी बहनों, इस वक्त ज़िना की नहुसत की वजह से फ़क्र और मोहताजी आम होती चली जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ऐसा है, मन इज़ा हद्दस सदक़ा, जब जो बातें करेगा तो सच करेगा, वइज़ा वादा अंजज़ा, जब वादा करे तो पूरा करे, वइज़ा तुमीना अद्दा, और जब अमानत ले तो अदा कर दे, वमन गज़्ज़ा बसरहू, और जो अपनी निगाह नीची रखे, वह हफ़िज़ फ़र्जहू, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, वकफ़ यदहू औ क़ाल नफ़्सहू, और जो अपने हाथ या अपनी ज़ात को दूसरों को अज़ियत देने से रोके रखे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये आदमी जन्नती है। जो इन 6 कामों की करने की, जो इन 6 बातों के बारे में ज़मानत दे देगा मुझको, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कि जो बात करने के मौके पर सच बात करने के, जब जो बात करेगा वो सच्ची बात करेगा, और जब वादा करेगा तो पूरा करेगा, जब अमानत देगा तो अदा कर देगा, और अपनी निगाह को नीचे रखेगा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगा, और जो अपने हाथ या अपनी ज़ात से दूसरों को तकलीफ देने से खुद को बचाएगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये 6 काम जो कर लेगा मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मेरी माँओं, मेरी बहनों, आज हमारे अपने घरानों में हया का माहौल देने की ज़रूरत है, पर्दे का माहौल अपनाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे मुसलमान बच्चियों के अंदर से पर्दा ख़त्म होता जा रहा। माँ तो बड़ी दीनदार है, माँ पर्दे वाली है, माँ तो नमाजी है, माँ तो इज्तिमा में जाने आने वाली है, लेकिन उनकी बेटी साहिबा शादी खाने में फैशनेबल ड्रेस पहने हुए, क्या मतलब नहीं कर रहा है? मतलब ये नहीं कर रहा कि अम्मी जान की दीनदारी अम्मी जान तक रुकी हुई है, वो बेटी को दीन की बात नहीं सुना रहे। वालिद साहब बड़े दीनदार हैं, दीन के कामों में लगे हैं, सालों से लगे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, उलमा की मजलिसों में जाते हैं, इल्मी मुज़ाकरे कर रहे हैं और तालीम कर रहे हैं दीनी किताबों की, लेकिन इसके बावजूद आलिम साहब की बीवी और वो जो दीनदार साहब की बीवी और उनकी बेटी है, उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई दीन नहीं है, क्योंकि साहब का जो दीन है ना वो घर के अंदर तक नहीं जा रहा, वो बस घर की चौखट से बाहर ख़त्म हो जाता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम अपने घरानों में हया का माहौल दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया, मन हफ़िज़ मा बैन लहयैहि व बैन रिजलैहि दख़लल जन्नह, जो शख्स उस चीज़ को महफूज कर ले जो उसके 2 चपड़ों के दरमियान यानी ज़बान, और उस चीज़ को महफूज कर ले जो 2 पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपनी ज़बान की हिफाजत की ज़मानत दे दे, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ज़बान भी महफूज हो, शर्मगाह भी महफूज हो, कोई गुनाह का काम ना हो, कोई बेहयाई का काम ना हो, कोई बेशर्मी का काम ना हो। आज हमारे अपने मुसलमान घरानों में धीरे धीरे आप देखो बेहयाई प्रमोट होती जा रही है। पहले का एक वक्त ऐसा था जब कहीं पर कोई जाना होता, कोई मर्द खड़ा होता और कोई खातून आती, तो उस खातून को देखकर मर्द उनको जगह बनाने के लिए सोचता था कि किस तरह उस बहन को मैं जगह दे दूं ताकि वो बहन, पर्दे वाली बहन, किसी तरह अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले, दुकान के अंदर चली जाए या सामान खरीद ले या जो भी काम के लिए आई है। लेकिन अभी ऐसी बेहयाई और बेशर्मी आगे बढ़ती जा रही है कि औरतें शर्म और हया करना छोड़ रही है। मर्द हजरात खड़े हैं, कोई झिझक नहीं है, वो सीधा बस चले और चले गए वहां पर वो जगह पे। अब मर्दों को शर्म आ रही है, बोले कि क्या हो गया साहब, क्यों ऐसा कर रही है औरतें? हया खत्म होती चली जा रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाए जो चाहे करो। आज हमारे अपने घरानों में, मुसलमान समाज में, मुसलमान सोसाइटी में हमें इस बात की पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमको अपने घरानों के अंदर हया का माहौल बनाना।
हमारी अपनी दावतें, हमारी अपनी शादियां, हमारी अपनी घरेलू महफिलें, हमारे अपने स्कूल के बच्चे। अभी देखो आप, एनुअल प्रोग्राम्स का मौका आता है स्कूल्स के अंदर, जितने स्कूल्स में एनुअल प्रोग्राम होता, इल्ला माशाअल्लाह कोई कोई ऐसे हैं जो इस्लाम की तालीमात को नहीं छोड़ते, वरना तकरीबन तो ऐसे हालात सुनने में आ रहे हैं कि एनुअल प्रोग्राम के अंदर में डांस करवाया जा रहा है। हालांकि बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इंग्लिश का, साइंस का, हिंदी का, तेलुगु का, मैथ्स का, सोशल का, दीनियात पढ़ रहा, उर्दू पढ़ रहा, लेकिन एनुअल डे प्रोग्राम के मौके पर बच्चे क्या कर रहे हैं? डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि डांस का सब्जेक्ट तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, नात का नाम दिया जा रहा, कह रहे हैं कि इस्लामिक डांस है। भाई कोई इस्लामिक और गैर इस्लामिक डांस नहीं है, कोई डांस है ही नहीं इस्लाम में। ये तो बिल्कुल गुनाह है, ये तो गलत है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए, माँ बाप को फिक्र होना चाहिए। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चे के एनुअल डे प्रोग्राम के मौके पर अपना मोबाइल लेकर बच्चों की वीडियो बनाने में लगे हैं और उस वीडियो को स्टेटस पे लगाएंगे। फिर क्या मतलब नहीं कर रहा है कि आपका बच्चा साल भर क्या कर रहा है वो बता रहे हैं। हमारा बच्चा देखो जी साल भर इस स्कूल के अंदर पढ़ता है और आज हमारा बच्चा डांस कर रहा, हमारी बच्ची डांस कर रही। क्या करना साहब? हमारी बच्ची के डांस को देख के थालियां मारो, क्लैप्स मारो। आपकी बच्ची को आप डांस स्कूल में डाले? नहीं साहब, हमारी बच्ची को तो हम इंग्लिश पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहे, तेलुगु पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे, साइंस पढ़ा रहे। फिर वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा बच्ची का? वो इसलिए नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों का ज़हन ऐसा बनाया गया है कि बच्चे नाचने में खुश हो रहे हैं और बच्चों के माँ बाप भी खुश हो रहे हैं। बच्चे नाचने में खुश हो रहे हैं और बच्चे के माँ बाप भी नाचने में खुश हो रहे हैं। मेरी माँ और मेरी बहनों, इस तरफ हमको खास तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरीके से आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि अभी आज 20 तारीख आ गई है जनवरी की और तकरीबन 21 तारीख रजब के महीने की भी है। अभी एक हफ्ता जाने के बाद में रजब का मौका आता, शबे मेराज का मौका आता। तो शबे मेराज की मुनासिबत से हमारे ज़हन और दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि शबे मेराज बहुत सारे कुछ इबादतों के करने का एक मौसम है और कोई ख़ास इबादत और एहतिमाम की रात है और पूरे